हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 21, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप यानी राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। ये टॉपिक देखा जाए तो कई मायनों में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है हर एक बात पे जो है हम प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is the most important here, political parties. There is the most important here, political parties, function and the role. There is important. You have already read about their political parties are extremely for their proper as a functioning of representative democracy. That's important. The political party are extremely for their proper functioning of representative democracy. They were a form of vital function in every political system. It is important to know who plays a candidate before the electorate when there are elections in the country. Do you know who carry out a campaigns during the election? Have you ever realized how a government is formed and who is the nominated as the prime minister or chief minister? All this related to the function of political parties and their role in a democratic polity. The function performed by their political party, especially in the context of India, are agenda. That's important here. The first year, there is a nominated candidate during to the election. They nominated candidate during the election and their campaigns to be obtained support for their candidate in the election. They place objective and programs before the voter through there is a manifesto. And those securing the majority in the election from the government and enact and implement the policies. And those not in a power from oppositions and keep a constant check on their government. And they form opposition when they are the minority in the legislatures and constantly put a pressure on the government for a proper governance. That's important. And the next year, they educate a people and help in the formulating and shaping the public opinion. And they articulate people's demand and convince them to be government, and they provide a linkage between two people and governmental institution. This is important. In India, political parties has been performing the above mentioned function and quite effectively since the independence. And they have made representative governments in India both possible and successful for over past 6 decades. They provide effective links between the citizen and the government on the one hand, and the electorate and there is representative on the other, and they try to cater to people's
are demanded on public matters and mobilized of political participation. An election without parties would be have also been impossible. In fact, democracy needs a strong and sustainable political parties with the capacity to be represent a citizen and provide a policy choice that is demonstrate their ability to the govern for the public good. The experience of functioning of political party in India during the last six decades indicate that by and large they has been to the instrumental in the shaping public opinion, creating a political awareness and imparting political education to the people, and they successful from their governments, and there where they receive the mandate of the peoples and implement their representative policies and programs both at the center and in the states. They have a contribute to about the making the institution and process of government true democratic. We can therefore say that democracy in India has been strengthened by the competitive and multi-party system. आगे जो हमारे समक्ष यहाँ आया है राजनीतिक दल के कार्य एवं भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल के क्या कार्य होने चाहिए और क्या भूमिका है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा। यहाँ पर आपने अब तक पढ़ा भी होगा कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दल जरूरी है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक के कारण हमारे देश में कई पार्टी हो सकती है, क्योंकि पार्टी होती है तो एक दूसरे की गलतियों का पता चल जाता है, क्योंकि एक का गलती दूसरे जरूर रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अहम कार्य करते हैं और यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब देश में निर्वाचन होते हैं तो उम्मीदवारों के निर्वाचन मंडल के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है। क्या आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान कौन चुनाव करवाता है और कौन कराता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी जानना चाहा है कि सरकार कैसे बनती है और किसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया जाता है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सब जानना बहुत काफ़ी दिलचस्प भी रहेगा कि कैसे जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है और कैसे जो है मुख्यमंत्री के जो है पद को नामांकित किया जाता है। तो ये सब हम विस्तार पूर्वक इसी चैप्टर में हम वर्णन करेंगे, जानेंगे। बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। आगे है ये सभी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित है। कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी बातों का चर्चा की गई है। राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य विशेष रूप से भारत में संदर्भ में कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से कार्य विशेष रूप से दिए गए हैं जो राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं, तो इसमें प्रकाश डालें। पहला कार्य यही आता है कि ये चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं। ये चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं, जिसको चाहे उसको जो है खड़ा कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक दल का जो है महत्वपूर्ण कार्य है और ये चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रचार भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है चुनाव के दौरान बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके जो है हर एक जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और जैसे हो जनता से वोट मांगते हैं। कुछ लालच दे देते हैं तो कुछ जो है भरोसा देते हैं, कुछ विश्वास दिला देते हैं। तो ये सारे जो है समर्थन प्राप्त करने का जो है प्रोपेगेंडा होती है, तरीके होते हैं, रूल रेगुलेशन होता है। कहते हैं जिनकी बातें जो है आम जनता समझ गई, मान गई और जिनके लालचों में आ गई वो दल सफल हो जाता है, और जिनके मकसद अच्छा भी हो और वो लालच न दिया हो तो वो बेचारे रह जाते हैं। तो ये समर्थन प्राप्त करने हेतु सभी प्रचार करने का उनका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कार्य रहता है।
ये मतदाताओं के समक्ष चुनाव घोषणा पत्र के द्वारा अपने उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से राजनीतिक दल जो है मैनिफेस्ट जारी करते हैं इलेक्शन से पहले, और उसमें कुछ बाधा लिखी हुई होती है जो उनको करना होता है। लेकिन देखा जाए तो वह बाधा तो कहते हैं सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए होती है, लेकिन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उनका जो है चुनावी घोषणा पत्र अवश्य होता है। आपने नायक फिल्म भी देखा होगा, उसमें अनिल कपूर जो है यही बातों की तरफ इशारा करते हैं कि भाई किस प्रकार जो है राजनीतिक दल बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये तो आप भी जानते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल ही सरकार बनाते हैं, ये तो आप भी जानते हो। चुनाव में जो बहुमत प्राप्त कर लेते हैं दल, वही सरकार उस राज्य का भी बनते हैं। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। या तो चुनाव में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है, लेकिन आजकल गठबंधन का सरकार चल रही है। आजकल जो भी क्षेत्र में आप चले जाओ, यहाँ पर पुण्य बहुमत नहीं होती है। इक्का दुक्का राज्य होगा जहाँ उनको पुण्य बहुमत मिला हो, लेकिन ये जो जब सरकार बनाई जाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं किसी भी क्षेत्र का, या जब प्रधानमंत्री कोई बनता है, तो गठबंधन की सरकार की आजकल एक दौर से चली हुई है, ठीक है। और जिसका जो है गठबंधन करके भी जिसका बहुमत साबित होता है, वही सरकार बनाने योग्य रहता है। अपनी नीतियाँ लागू करने और उन पर कार्य करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही होता है कि जो नीतियाँ उन्होंने बताया है, जो लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, उस पर कार्य करने का समय हो जाता है जब वो सरकार अपने बना लेती हैं। जो सत्ता में नहीं होते वो विरोधी दल बनते हैं और सरकार पर लगातार नज़र रखते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो सत्ता में नहीं होते हैं वो विरोधी दल बन जाते हैं, और विरोधी दल का कार्य यही होता है कि सरकार की जो है बुराइयों को बताना, ठीक है। लेकिन आजकल राजनीतिक में ऐसा नहीं देखने को मिला है। सरकार अगर कुछ अच्छा कार्य भी करे, जैसे आप बात ले लेते हैं नोटबंदी की, कहते पूरी जनता ने नोटबंदी को जो है सार्थक सिद्ध किया और जनता ने खुशी मनाई कि चलो कोई बात नहीं है, काला धन बाहर निकलेगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत से जो राजनीतिक पार्टी जो थे, जो है नोटबंदी के कारण धरने पर बैठ गए और सरकार की आलोचना करने लग गए। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि नोटबंदी अच्छाई के लिए थी कि बुराई के लिए थी। क्या ये जनता के लिए कुछ क्या था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखा जाए तो जनता ने इतने सपोर्ट किया नोटबंदी को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगर आपको पता होगा कि बड़े बड़े पार्टियों ने जो है काला आंख में पट्टी बांध के जो है लोकसभा राज्यसभा के बाहर क्यों बैठे, धरना क्यों दिया, क्या लोग जो नोटबंदी की गई थी वो सही था कि गलत था? अगर गलत था तो जनता ने क्यों समर्थन किया? अगर सही था तो ये बड़े बड़े पार्टी क्यों इसके धरना पे बैठ गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखता हूँ कौन बच्चा मुझे इसका आंसर भेजता है। चलिए, ये आपके लिए आंसर था। बहुत महत्वपूर्ण बात ये आ गया था, जो सत्ता में नहीं होते वो विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। जब विधान पालिका में वो अल्पमत होते हैं तो विपक्ष के रूप में सरकार पर अपने अच्छे शासन के लिए लगातार दबाव बनाए रखते। चलिए, कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, विपक्षी पार्टी, क्योंकि सरकार की हर एक गलतियों को बताना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रहीम जी ने भी कहा कि अपने साथ वो एक ऐसे व्यक्ति को रखिए जो आपकी बुराइयों को बताता रहे। वो बिना साबुन के जो है सदैव जो है आपका स्वभाव को निर्मल करता रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जो विपक्ष होना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो सरकार की बुराइयों को सदैव बताती रहेगी और ये लोगों को शिक्षित भी करते हैं और जनता की राय जानने एवं उनसे दिशा देने में मदद भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सारी। उसके पश्चात आता है ये लोगों के अपेक्षाओं अथवा मांगों को समझते हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे हैं पार्टी जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो जनता की हर एक बात को समझते हैं, उनके लिए ही कार्यरत होते हैं, लेकिन कुछ ही हैं। मैं सबको यहाँ पर नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा मैंने कहीं देखने को नहीं मिला है। मुझे तो न्यूज़ में हमेशा उल्टी पुल्टी बातें ही आए दिन सुनने को मिलता है, तो मैं कैसे कह दूँ कि राजनीतिक पार्टी अच्छी होती है। ये लोगों एवं सरकारी संस्थाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो नेता होते हैं लोगों और सरकारी संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि जनता के बीच से ही चुने जाते हैं, क्योंकि जनता में ही वो होते हैं। तो जनता की हर एक जो है अच्छाई बुराई और उनके समस्याओं को जानते होंगे। लेकिन देखा जाए तो मैंने बहुत से नेताओं को देखा है कि आम गरीब जनता की सारी समस्या वो जानते हैं,
लेकिन जैसे ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाता है, सारी बातें भूल के जो है सरकारी राज खाट में जो है अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं जनता कहाँ उनको नज़र आता है। अगर कुछ अपने पापों को धोना होता है तो कुछ ही जो है ये अच्छे काम कर जाते हैं, तो ये गलत है। कहते हैं जनता ने जब आपको चुन के भेजा है तो आपको जनता की हर एक समस्या का समाधान करना आपका प्राथमिक कार्य बन जाता है। उसके पश्चात भारत में स्वतंत्रता के समय से राजनीतिक दल उपयोग कार्य के पूरी कुशलता से करते रहे हैं। उन्होंने भारत में पिछले 6 दशकों से प्रतिनिधित्व सरकार के संभव एवं सफल भी बनाए हैं। कहते हैं अब तक जो है राजनीतिक दलों के कारण ही भारत सफल भी हुआ है, क्योंकि जिस समय हम आज़ाद हुए थे हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े लोकतंत्र और बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के कारण भारत जो है एक अच्छा से अच्छा बन सका। और एक तरफ सरकार एवं नागरिकों के बीच तो दूसरी तरफ मतदाताओं एवं प्रत्याशियों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करते हैं। और ये जनसाधारण से जुड़े मुद्दे पर जनता की मांगों को पूरा भी करने का प्रयास सदैव करते ही रहते हैं। इनकी प्रयास कभी ख़त्म ही नहीं होता और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा भी देते हैं। बिना पार्टी के चुनाव लगभग असंभव ही होता है। वास्तव में लोकतंत्र के लिए सशक्त और सतत राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, जिसमें नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो और नीतियों को विकल्प प्रदान करे तथा जो जनता के हित के लिए जो है शासन करने योग्यता रखते हों। तो ये बात तो मैं जो निरर्थक बात समझता हूँ जो लिखी हुई है कि ये जनता के हितों की देखे, लेकिन यहाँ जनता के हित कोई नहीं देखता, विकल्प प्रदान कोई भी नहीं करता। चलिए ये बात मैंने कहा ना सिर्फ किताबी बातें होती है, वास्तविकता में ये बात कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। भारत में पिछले 6 दशकों के दौरान राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का अनुभव यह दर्शाता है कि अधिकांश ये जनमत बनाने और राजनीतिक जागरूकता लाने और लोगों की राजनीतिक रूप से जो है शिक्षित करने में सक्रिय रही हैं। ये वहाँ सफलतापूर्वक जो सरकार का गठन करते हैं जहाँ उन्हें लोगों के जनादेश प्राप्त होता है, यानी जहाँ जनता उनको चुनती है और शासन देती है वहीं पे जो है जनादेश तैयार करते हैं और केंद्र तथा राज्य में अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम लागू करने के लिए सदैव ही अग्रसर रहते हैं, यानी हमेशा ये जो है लागू करने में ही लगे रहते थे। आपने देखा भी होगा कि आए दिन इनकी नई नई नीतियाँ आती रहती है, आए दिन देखने को हमें मिलता है। कभी इस चीज़ पे नीति, कभी उस चीज़ पे नीति, कभी ये प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम तो इनका सफल हुआ नहीं, दूसरा प्रोग्राम लाके जनता के सामने थोप देते हैं। तो इनकी प्रोग्राम और इनकी नीतियाँ और कार्यक्रम चलती ही रहती है। मेरा तो विचार ये है कि पहले अगर आपने एक नीति बनाई है तो उसका 100% सफलता प्राप्त करो, क्योंकि जब तक उसकी सफलता नहीं होगी दूसरा नीति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ने सरकार की संस्थाएं प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने में अपना योगदान दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतिष्ठात्मक एवं बहुदलीय प्रणाली के द्वारा सशक्त हुआ है। कहते हैं बहुदलीय प्रणाली बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हम भी जानते हो और आप भी जानते हो, क्योंकि जो हमारी गलतियों को बताए वही वास्तविक हमारा मित्र होता है, वही हमारा जो है कहते सबसे प्रिय होता है। क्योंकि हमारी गलती कहते हैं आज के समय में देखिएगा कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानता है वो सदैव ही उच्च पद प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को जानता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको बात समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो या आगे चल के अच्छा से अच्छा कार्य करना चाहते हो तो जर्नल सी बात है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, ठीक है। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ यूट्यूब पे उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ सदैव के लिए जुड़ जाइए।